हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 2 मिनट में यार क्लास शुरू करते हैं, 2 मिनट वेट करो बस। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ भी, कैसा हो पेपर तेरा साहिल? कल पेपर था। सर साहिल का माइक ही नहीं दिख रहा है। ये माइक ही नहीं दिख रहा था। हाँ हाँ भाई, आज यार ये डिस्कस करना है अपने को। हाँ जी सर। एक्सेस 0 ये कर ली है, क्या सीन है इसका? सर और रह गए थोड़े, ये इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व वाले थोड़े नहीं, एरिया अंडर तक अब तो चलो कोई चक्कर नहीं, डेफिनेट हाँ जी डेफिनेट एरिया तो अंडर होगा तक अब तो सर। आज कराऊंगा आगे मैं वैसे भी। अच्छा सर, वो तो हो गई सर डेफ। पार्ट अच्छा ए जी। तो अपना डिस्कस हो गया सी, पार्ट बी तो पहले 10 क्वेश्चन में डिस्कस हो गए सीगे। हाँ जी सर। हाँ, आगे दसो।
11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ 30 ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ 47 ਹੈ ਸਰ। 47 x ਮਾਈਨਸ ਜੈਂਟ x ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ x। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਮਿਟ ਜੈਂਟ x ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ, ਜੈਂਟ x into 1 ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਜੈਂਟ x ਤਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 7 ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 7 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। 30 ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 4 ਲਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ 31st ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ fx ਨੂੰ ਮੋਡ sin x ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ -x ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ sin x ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੋਡ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਮਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਜੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਖੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ठीक है सर। हाँ जी, और बताओ आगे पार्ट पी में और कोई डाउट? ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਜਿੰਟੈਕਸ ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੇ 30h ਨਹੀਂ ਸਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਜਿੰਟੈਕਸ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 7 ਲੱਗ। ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ x ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ x ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਟੈਕਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। हाँ जी, और कोई डाउट? ਸਰ ਇੱਕ 50th ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਰ। 50th ਤਾਂ ਬਸ वही ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲਾ e रेस्ट पर x ਨਾਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। e रेस्ट पर x ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਹੂਗਾ। e रेस्ट पर x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਹੈ, e रेस्ट पर x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਬਣੂਗਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ। नहीं सर ठीक है कोई बात नहीं। तेरा तो बस इधर 18 ही क्लास हुई है अपनी। हाँ जी तेरा तो बस इधर क्लास 18 छुट्टियां थी ना 3 दिन। हाँ ये 3-4 दिन छुट्टियां सी गई आगे ना यूजिंग e रेस्ट पर x कराया सी क्लास। अच्छा ठीक है ठीक है। सर एक पार्ट ਉਹਦਾ 8th ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਾਰਟ ਸੀ ਦਾ ਜੀ। ਪਾਰਟ ਸੀ ਦਾ 8th ਸਰ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ 0 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ n ਸਕੁਅਰ ਬਚੂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹੀ ਪੰਗਾ। एक n ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆਊਗੀ। एक n ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਅਪਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫਿਰ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 11th ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 6n ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਦੀ ਸਮੀਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐ ਲਵਾਂਗੇ r = 1 ਤੋਂ 5n ਤੱਕ ਹੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਊਗੀ 1 ਤੋਂ 5 0 to 5 ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਪਾਰਟ ਡੀ ਦਾ ਇੱਕ 3rd ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਰ। थर्ड ਤਾਂ वही है ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖੀ ਸੀ in plus in minus 2 is equal to 1 upon n minus 1 ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। n + 1 ਤੇ n - 1 ਬਸ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ n + 1 ਤੇ ਆ ਗਿਆ in + 1 plus in minus 1 is equal to 1/n। सर ये तो कोई आंसर ही नहीं है जी। n भी है बार मल्टीप्लाई ना n into 1/n 1 बन जाएगा। अच्छा ठीक है सर ठीक है ना। सर एक एरिया अंडर कर्व नहीं होया सर सारा मतलब थोड़े जो एरिया अंडर करता है होमवर्क देता भी नहीं सी डेफिनेट इंटीग्रेशन देती थी होमवर्क वैसे भी करा नहीं सर सुने 0 सारी लिखी सी ना ये
हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਔਰ ਕੱਲ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ 10th ਦੇਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ 10th ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ 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 ਸਰ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ 2 ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਊਗਾ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਤਲਬ 4 R1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ 1 ਹੀ। ਏਰੀਆ 1 ਹਾਂ ਓਕੇ ਸਰ 9th ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ 9th ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9th ਇਹਦੀ ਕਰਵ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਇਹ y = x। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਉਹ ਹੈ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਕਰਵ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੂਗਾ 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਰਹੀ x ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 2 - x * x ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 ਤੇ 0 2 ਤੇ 0 इस शेप का पैराबोला बनेगा कुछ इस शेप का ठीक है y + 3 = 0 मतलब y = -3 ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ठीक है ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ y ਨੂੰ -3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਸਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ? हाँ हाँ सारा दोनों दे बस इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स क्या है ना मतलब कर्व एक कर्व था ये पहला कर्व था ये है ना दूसरा कर्व ये है बाउंड्री दोनों कर्व्स होनी चाहिए थी ठीक है इधरों आ गया x² - 2x - 3 = 0 x - 3 x + 1 = 0 ते आ गया -1 ये आ गया 3 -1 तो लगे 3 तक ऊपर वाला कर्व 2x - x² माइनस नीचे वाला कर्व dx सर नीचे -3 की लिखा है पैराबोला को भी सर सर हाँ जी और बताओ आगे सर हाँ जी सर ये पूछना ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ -3 ਕਾਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ इसमें जी y = -3 इसका सर ये तो लाइन नहीं आ जाएगी
हाँ हाँ, तो लाइन तो ये है ना, ये नीचे वाला कर्व लाइन है, ये ऊपर है, ये नीचे, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। सर इधर एरिया तो मेरा काफी बड़ा आ रहा है ये। तो क्या हुआ मेरा गया? मेरा 32/3 आ रहा है ये। हाँ ये इतना ही आंसर आंसर? तो यही है। हाँ जी। हाँ, तो बस फिर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3x माइनस 1 तो लगे 3 तक, 9 माइनस प्लस 9 प्लस 9 ओहो माइनस ऑफ ठीक है जी 1 ठीक है। प्लस 1/3 और माइनस 3 आ गया 9 प्लस 3 माइनस 4/3 12 12 माइनस 36 माइनस 4/3 32/3। ठीक है ना? हाँ जी, और बताओ यार, बस यही, चलो अब आगे प्रैक्टिस करते हैं इस पे। हाँ जी हाँ सर, जी ये यार, एक ना करा नहीं एट्थ ये वाला क्वेश्चन होता था जिसमें ना ट्राइंगल का एरिया निकालना होता था अपने को, लेकिन ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव में तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एट्थ वाला जो था ना, इसमें ट्राइंगल दिया होता था, ट्राइंगल बना के उसकी लाइंस अपना वो निकालना होता था अपने को एरिया। ठीक है, तो ये आप कर लेना घर पे खुद से। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट यार इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें इनइक्वालिटीज अपने को निकालनी होती है, जैसे 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन में क्या है कि अपने को इनइक्वालिटी दी हुई है, उस इनइक्वालिटी के हिसाब से एरिया निकाल। अब ये जो है, ये अपने पास अपने को दिख रहा है एक पैराबोला है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो इनइक्वालिटीज की एक बेसिक से बता दो सबके लिए क्या होती है। लाइन की इनइक्वालिटीज कैसे ड्रॉ होती है? इनइक्वालिटीज ऑफ लाइन, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, जैसे अपने पास आई, जैसे इसको ये लाइन है y लेस देन इक्वल टू x+1, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं इक्वल टू मान के। इक्वल टू मान के कैसे ड्रॉ करेंगे? x को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 1, और y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू -1 कॉमा 0। तो ये अपने पास लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है जी, अब इसमें सर ओरिजिन इतना पुट कर लेते हैं। सर ਇਹਦਾ ਉਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं इक्वल टू मान के। अब इसमें ओरिजिन पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू आ गया, ट्रू आ गया तो ये सारा रीजन आंसर आ जाता है। ठीक है, ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, अगर फॉल्स आता तो मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर की तरफ को। अगर ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन की तरफ को। लाइन में ओरिजिन पुट कर लेना है, देखना इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू पे टुवर्ड्स ओरिजिन, अगर फॉल्स होता तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन से अवे होता। ठीक है जी, अब इसके बाद पैराबोला, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स में क्या है सिस्टम है कि S1 ग्रेटर देन 0 पे आउटसाइड होता है और S1 लेस देन 0 पे इनसाइड होता है। हमने पढ़ाई है तो S1 इक्वल टू 0 पे ऑन द कर्व होता है तीनों के लिए। हाइपरबोला के लिए उल्टा होता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स तीनों के लिए सेम होता है। S1 ग्रेटर देन 0 पे आउटसाइड, S1 लेस देन 0 पे इनसाइड। S1 होता क्या है बेसिकली, इक्वेशन के अंदर पॉइंट पुट करते थे, तो यहाँ पे सीधा इक्वेशन से ही देख लेना है अपने को। पैराबोला में खासकर ध्यान रखना है, पैराबोला में जो स्क्वायर वाली टर्म है दैट शुड बी पॉजिटिव। स्क्वायर वाली टर्म शुड बी पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव नहीं होगी तो फिर अपने को दिक्कत रहेगी। ठीक है ना, फिर अपने पास उल्टा आंसर आएगा। जैसे ये हम पैराबोला की बात कर रहे हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू x² + 1, सॉरी y लेस देन इक्वल टू x² + 1।
पहले तो ये पैराबोला ड्रॉ करना है। ये पैराबोला क्या है, x सर। स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1। सर हाँ जी, सर थोड़ा धीरे चलो सर, अभी ऊपर वाला भी नहीं उतारा सर। और उधार बाद में लिए, पहले समझ ले। ओके x सर। स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस 1, x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 जो पैराबोला है, ये पैराबोला वो वाला है जो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला होता था। x स्क्वायर इक्वल टू Yes. 4ay वाला पैराबोला ये होता था, ठीक है ना। इसको शिफ्ट किया हुआ है, x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 में y को अगर हम 1 डालेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, y को अगर 1 डालेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो पैराबोला कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि इसका इनसाइड वाला रीजन है या इसके आउटसाइड वाला रीजन है, तो उसके लिए S1 लिखना है अपने को। अब S1 लिखने के लिए क्या करना है, जो x स्क्वायर वाली चीज है वो पॉजिटिव रखनी है, ठीक है। जो x स्क्वायर है वो पॉजिटिव रखना है, y को दूसरी साइड लेके जाना है। x को अगर x स्क्वायर को साइड ले जाओगे तो फिर आंसर उल्टा आ जाएगा। तो जो स्क्वायर वाली चीज है उसको वहीं रखना है पॉजिटिव वाली साइड पे, y को साइड ले आना है। तो जो साइन बन रहा है ग्रेटर देन का बन रहा है, ग्रेटर देन मतलब एरिया इज आउटसाइड। तो कौन सा आंसर आया, ये वाला। ठीक है, नीचे तक। ਸਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ हाँ y बस अल्टरनेट। पॉजिटिव, S1 पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव पे आउटसाइड, S1 ग्रेटर देन 0 पे आउटसाइड होता है। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਰ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ origin ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, कहाँ पे कराया ओरिजिन सेटिस्फाई, वही पूछ रहा हूँ सर भी मतलब ग्रेटर देन किਵੇਂ ये लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ये। ठीक है जी, ठीक है गिवन है। ओरिजिन कहाँ डाला है इसमें, ओरिजिन तो लाइन में डाला था पीछे। हाँ जी ठीक है जी। यार ये तो पढ़ चुके हैं भाई, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। S1 ग्रेटर देन 0 पे आउटसाइड, लेस देन 0 पे इनसाइड, इक्वल टू 0 पे ऑन। हाँ जी सर समझ गई, मैंने पता लग हाँ गई। तो ये S1 लिखा हुआ है। करो फटाफट नोट इसको, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना है 12th वाला। कर लिया भाई नोट। यस सर। ये वाला क्वेश्चन करना है यार 12वां। तीनों को ड्रॉ करो। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਮਿਕਸ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ। पहला यार ये है, ठीक है, ये 1 है। दूसरा ये है ऐसा, ठीक है। तो इसके भी नीचे वाला रीजन था, इसके भी बाहर वाला रीजन था। ये पॉइंट x इक्वल टू 1 होगा शायद।
0, तो इसके पैराबोला के भी बाहर वाला, लाइन के भी बाहर वाला, तो ये एरिया आ जाएगा यहाँ से इंटरसेक्शन, और यहाँ से ये इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 तक। तो बस ये 2 एरिया निकालने हैं। 0 से 1 तक तो पैराबोला है, पैराबोला मतलब x² + 1 dx, क्योंकि x एक्सिस से आगे निकालना ना, और 1 से 2 तक है लाइन, लाइन इज x + 1 dx। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ x y ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ x + 1 ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਕਰਵ ਦਾ ਏਰੀਆ। नहीं इंज नहीं देख सकते, ओरिजिन पुट करके देखना पैंदा। ਅੱਛਾ ਜੀ। हो गया भाई, लिख लिया? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੋ ਗਈ। 13th करना है, 14th करना है इसके बाद? थर्टीन 14। ਸਰ हाँ जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ 2 ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚ 13 ਚ। ਤਾਂ हाँ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ। बिल्कुल बिल्कुल सही। ਓਕੇ ਸਰ।
ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਸੇਮ s1 ਲੈਸ ਦੇਨ 0 ਹੈ, 4x ਨਹੀਂ ਸਕੁਅਰ ਸਰ, ਪਲੱਸ 4y ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 9 ਮਤਲਬ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਲੈਸ ਦੇਨ 0 ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਚ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 14 ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇਈ ਦੇ ਫੈਬਰਵਰੀ 12 ਵਾਲੇ ਚ, ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 3/2 ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1/2 ਤੇ 9/2 ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ 1/2 ਤੋਂ 9/2 ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਚ ਔਰ 9 ਇੱਕ ਬਾਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਚ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ x ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਐਕਸ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। x ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 9/2 ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, 1/2 ਹੀ ਆਊਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਸਰ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ 3/2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। नहीं 1/2 वाला आएगा इसमें। ये पूरा एरिया है, ऊपरला निकाल के डबल कर दो, तो एरिया इज 2 टाइम्स 0 to हाफ, 0 से हाफ तक पैराबोला, 2√x प्लस हाफ से 3/2 तक सर्कल, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ।
सर इधर तो फिर साइन इनवर्स वाला फार्मूला लग जूगा ना, पीछे रह गया ही अपने कोले। हाँ हाँ बिल्कुल वही वाला। सर हाँ जी हो गया। ये नहीं है आंसर। सर आ गई तो मैं साइन इनवर्स ए भरना ਹੁੰਦਾ मैं तो ए स्क्वायर भरता जी 2/1/3। ये क्वेश्चंस करने हैं यार अभी 21 22 24 27 28। 28 में के दोनों ए और बी। सर जी ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜੀ। हाँ हाँ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, हाँ ਉਹ ਚ ਐ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ x ਬਾਏ a x a ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 3/2 ਹੀ, हाँ ਤਾਂ ਇਹ हाँ A3/2 बिल्कुल। ਤੇ ਸਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 3/2 ਚ ਜੋ 2/3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ 2 ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ हाँ हाँ 3/2 ਵਾਲੇ 2x/3 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਚ ਜਦੋਂ 3/2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ। हाँ ਸਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ x/2 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? फॉर्मूला ये होता है x/2 प्लस रूट ऑफ a² - x² ਉਹ प्लस a²/2 sin इनवर्स x/। ਮੈਂ ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ठीक है ना। ये बन रहा है यार।
ये आ रहा है एरिया। यस सर ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਰੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। इसके बाद 21, 22, 24, 27, 28। ਸਰ हाँ जी, ਸਰ ਜਿਵੇਂ 21 ਚ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -x/2 ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ -x/3। हाँ हाँ, तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाले पैराबोला है। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਲਟੇ ਬਣਨਗੇ ਜੀ ਇਹ। हाँ, ਸਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना अपने को, तो a तो ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। a का y स्क्वायर इक्वल टू -x/2, वो ये वाला पैराबोला बनेगा। ठीक है, दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू 1 - x/3, तो ये x इक्वल टू 1 से शुरू होगा, कैसा पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा ये वाला, ये निकालने के लिए एक का x दूसरे में पुट कर दो। एक का x दूसरे में इधर पुट करोगे -2y², तो y की वैल्यू है y स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी एक की +1, एक की -1। तो y को किसी में भी पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये वाला एरिया निकालना है अपने को। ठीक है जी, अब निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ऊपर नीचे सिमेट्रिकल होगा तो 2 टाइम्स कर लेंगे ऊपर वाला एरिया। ऊपर वाला एरिया कैसे आएगा, -2 से लेके 0 तक पहले वाला पैराबोला माइनस नीचे वाला पैराबोला। ठीक है ना, ये वाला पैराबोला क्या है, √1 - x/3 माइनस √x/2। ये बन गया ऊपर वाला पैराबोला माइनस नीचे वाला पैराबोला। ठीक है जी, फिर 0 से 1 तक सिर्फ पहले वाला पैराबोला यहां से निकल के आएगा। तो ये इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, ये मुश्किल है। दूसरा तरीका क्या है आसान वाला, कि इसमें आप लगा लो सीधा सीधा राइट वाला ग्राफ माइनस लेफ्ट वाला ग्राफ। ये राइट है अपने पास, ये लेफ्ट है, तो डायरेक्टली लगा लो आप राइट वाला ग्राफ माइनस लेफ्ट वाला ग्राफ। कैसे, y के -1 से लेके 1 तक राइट में है ये वाला, x की वैल्यू पुट करनी होती है 1 - 3y² माइनस लेफ्ट वाला -2y² dy। फटाफट इंटीग्रेट हो जाएगा। कितना आ ਸਰ गया, 1 - y²। हाँ जी, ਸਰ ਉਹ 2 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ऊपर ਵਾਲਾ और नीचे ਦੱਸ। सेम है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲਾ 2 ਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ y को ਦੱਸੋ। y को 1 पुट कर ले, ਅੱਛਾ ਜੀ y को 1 पुट कर ले किसी भी इक्वेशन में। सर ऊपर करिए जी।
सर नेक्स्ट 22 है नेक्स्ट 22। सर टेंजेंट ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ हाँ हाँ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆਊਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਰ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਨਾ 1,2 ਤੇ हाँ 0/2 ਸਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਮੈਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨਾਲ वन कॉमा टू यहाँ आ गई है ये बन गया 2,3 इसमें यहाँ पे होगा 2,3 पर टेंजेंट लिखा ये 2,3 है तो ये वाला एरिया निकालना है आपने वो ठीक है जी। अब 2,3 को टेंजेंट लिखने के लिए पहले तो डिफरेंशिएशन करके टेंजेंट लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × y - 2 × y डैश इज इक्वल टू 1। तो y डैश की वैल्यू आ गई 1/2 × y - 2। y की वैल्यू पुट कर दी 3 तो y डैश आ गया 1/2 के इक्वल। स्लोप आ गई 1/2 और पॉइंट है 2,3 तो लाइन आ गई y - 3 इज इक्वल टू 1/2 × x - 2 तो 2y इज इक्वल टू x + 4।
ये आ गई, तो ये पॉइंट आ गया -4,0। y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -4,0 आ जाएगी। ये पॉइंट अपने को पता ही है 1,2 है, तो ये पॉइंट 1 है। ठीक है, ये पॉइंट अपने को पता है 2 है। ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट निकालने के लिए हमें x को 0 डालना, y को 0 डालना पड़ेगा। y को 0 डालेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास 4, 4 + 1 5। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मतलब ग्राफ जैसा बनेगा आगे जाके इस टाइप से, ऐसा यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा 5। सारा एरिया का तो देखो, पहले ये वाला एरिया तो ट्राइंगल ही है, जो ये वाला सर एरिया ਇਹ है। ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਸਰ, ਜਦੋਂ y ਨੂੰ ਸਰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਅੱਛਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹ? हाँ हाँ हाँ, ये पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक ਠੀਕ है ਹੈ ना, ਜੀ। जो ये वाला एरिया है, अब ये वाला, ये तो एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसका बेस कितना है? बेस इज 5। हाइट के लिए लाइन में x को 1 पुट कर लेते हैं। x को 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/2। ये पॉइंट कितना आ जाएगा 5/2। तो हाइट जो है ये वाली, ये जो हाइट है, दिस हाइट इज 5/2। तो इसका एरिया कितना आ गया जो ब्लू वाला है? 1/2 × 5 × 5/2, तो 25/4 तो इसका एरिया आ गया। ठीक है जी। अब जो ये वाला है, ये छोटा सा जो एरिया ऊपर है, ये एरिया कैसे निकल के आएगा? इसको मैं A1 मान रहा हूँ कुछ, ये पहला, ये फर्स्ट एरिया है। दूसरा जो रेड से शेड किया है A2, A2 कैसे निकल के आएगा? 1 से लेके 2 तक लाइन, लाइन इज x+4/y माइनस पैराबोला। पैराबोला क्या आ जाएगा अपने पास? देखो, पैराबोला के दो हिस्से होंगे। पैराबोला एक इससे ऊपर होगा, एक इससे नीचे होगा। जो ऊपर वाला होगा वो तो होगा 2 + √x-1। जो इसके नीचे वाला होगा वो होगा 2 - √x-1। ठीक है ना, y-2 का जब अंडर रूट लेंगे तो जाके तो +-√x-1 आने वाला है। तो ऊपर वाला प्लस वाला होगा, नीचे वाला माइनस वाला होगा। तो ये है 2 + x-1। ठीक है जी। और जो ये वाला एरिया है, इस एरिया की अगर मैं बात करूं, इसको हम एरिया 3 बोल रहे हैं। तो एरिया 3 आ जाएगा 1 से लेके 5 तक सिर्फ पैराबोला, 2 - √x-1 dx। तीनों एरियाज को ऐड करना है। ਸਰ ਉੱਥੇ x+4/2 ਆਊਗਾ ਨਾ ਜੀ? हाँ, ठीक है जी। ਸਰ ਉਹ 'ਚ ਸਰ ਕੱਲੀ x ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੂਟ, ਕਿ ਕੱਲੀ x ਤੇ ਹੈ ਜੀ? पूरे थे √x-1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਸੋਲव ਕਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। हाँ हाँ, कर लो कर लो। बाकी लोग आगे 24 शुरू करो, जितना हो गया।
हमें हुआ 24वां हुआ। सर लाइन सर दो ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਸਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸਿੱਧੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ x y ਆ x e ਵਾਲੀ ਆ हाँ हाँ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ x y ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ हाँ हाँ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ x 1 y 1 x ਆ ਸਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਹ ਬਣ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਉਸ यार ਤਰ੍ਹਾਂ ये 1 एक्स ਤੇ वाई इक्वल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा ये। y x y इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता ये वाला, ये कैसा वाला, ये कैसा वाला, ठीक है। और ये पॉइंट आ जाएगा 1, ये आ जाएगा ई, ये वाला एरिया निकालना अपने को। जीरो से 1 तक लाइन y इज इक्वल टू एक्स, 1 से लेके ई तक पैराबोला। याद है ना, हमने पैराबोला में लास्ट में पढ़ा था एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। सर 0 ਤੋਂ 1 ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨਾ ਜੀ हाँ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ 1 ਹੋਊਗੀ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1/2 log e ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ 1/2 log, यहाँ log ही तो 1 ही होता है फिर। ਓਕੇ 3/2 ਆ ਗਿਆ 27
ਸਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੂਗਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ y √x ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ हाँ सिर्फ ऊपर वाला पैराबोला। ਸਰ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਤਾਂ 3 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ हाँ ਜਦੋਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ x ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -3/2 ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ हाँ y ਮੈਨੂੰ माइनस ਤਾਂ 3/2 आ रही है ना। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ x y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ x ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜੀ x 3 -3 आएगी ना, 3 होगी x। y -x है y की वैल्यू होगी -3/2 ये बन रहा है यार, ठीक है जी ये वाला एरिया निकालना है। 0 से 3 तक तो पैराबोला, 3 से आगे यहाँ तक पैराबोला माइनस लाइन, ठीक है ना। x की जगह y की जगह √x पुट कर दो, 2√x इज इक्वल टू x -3, स्क्वेयरिंग कर दी 4x एक x 1 और एक x 9, ये आ गया। तो 1 तो हो नहीं सकता, अपने को दिख ही रहा है, 9 आ जाएगा ये। तो 0 से 3 तक पैराबोला, 3 से लेकर 9 तक पैराबोला माइनस लाइन। ठीक है ना। सर 0 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਸਰ ਅੱਗੇ 3 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਸਰ हाँ लाइन नहीं, पैराबोला माइनस लाइन। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ
अबे होगा 27वां। सर बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई सर इनकी। सर जो 28 है सर वो ऊपर वाला पैराबोला बन जूगा जी वो तो स्टार्ट होके। हाँ 1 ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। हाँ जी सर 1 तो ही 1,0 ਤੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚ x b ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਸਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੋੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਹੈ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ b ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ हाँ ये पैराबोला ना, ये पैराबोला है। यहाँ बी लाइन है तो एक ये एरिया R1, ये एरिया R2। 1 to 0 to B एक बार इंटीग्रेशन, B to 1 दूसरी इंटीग्रेशन। ये करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ बोलो हेलो हेलो बोलो।
हाँ भाई हो गया। नहीं सर ये नहीं समझा सर R1 की मतलब इंटीग्रेशन किस चीज ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ R1 ਵਾਲੇ ਜੀ 0 to b ਹਾਂਜੀ ਸਰ x ਜੀ 1 minus x square dx। अच्छा सर पैराबोला ਦੀ कर ਦਾਂਗੇ सिद्धि हाँ हाँ x के साथ ही है ना, तो इसका लिख लो बस 1 minus x की पावर 3 अपॉन 3। एक x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा -1 0 से b, तो आ गया 1 minus b का क्यूब अपॉन -3, या मैं लिख सकता हूँ b - 1 का क्यूब बाय 3। ये R1 आ गया। R2 क्या है, b से लेके 1 minus x का स्क्वायर dx, तो ये फिर से बन गया 1 minus x का क्यूब अपॉन -3 b से लेके 1, तो यहाँ 1 पुट किया तो कितना आ गया 0 माइनस ऑफ 1 minus b का क्यूब अपॉन -3, तो ये आ गया -b - 1 का क्यूब बाय 3। R1 minus R2 1/4 है, तो R1 minus R2 किया तो ये आ गया 2 times b - 1 का क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 1/4, तो ये आ गया b - 1 का क्यूब इज 3/8, b - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3/2। ऐसा भी ऑप्शन है उसमें? ऐसा भी ऑप्शन ही नहीं है ढूंढना। अच्छा यहाँ पे एक और भी आएगा ना, 0 पुट करने में भी आएगा यहाँ पे, ये गलती हो गई। ये आया 1 minus b का क्यूब बाय -3, 0 पुट करने पे -1/3, तो b - 1 का क्यूब बाय 3 प्लस 1/3, तो यहाँ -1/3, -1/12, 4 -1/8, यहाँ आ गया -1/2, b आ गया 1/2 के ऊपर। ठीक है जी। जी सर सेकंड पार्ट करना सर ਇਹਦਾ जी चलो टाइम तो होएगा, सेकंड पार्ट घर से कर लेना। अब एक मंडे हम डिस्कस करेंगे x से 0 का ये एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना। x से 1 का क्या डिस्कस हुआ अपना? 1 का तो शायद कुछ नहीं हुआ सर कुछ भी नहीं हुआ, तो पार्ट ए उसका करेंगे। x से 0 एरिया सर की, मंडे हाँ हाँ बोलो। पेपर भी है सर जी, कब? कल ही। चलो ये तो करो फिर, कम से कम एरिया का तो करो, हाँ ठीक है ना, ये मंडे के लिए। चलो मंडे मिलते हैं फिर। सर हाँ जी, टेस्ट में के लिए इंडेफिनिट आ रही है, डेफिनिट भी आ रही है, दोनों। दोनों। एरिया हाँ। तो नहीं आ रही यो च नहीं एरिया नहीं आ रहा।